Morning, everybody. Hi, myself, Kuljit Kataria. And with us, we have one of the esteemed speakers of the industry, Mr. Bhavin Thakkar. He is the CEO of Aban Investment Managers. He has conceptualized many investment strategies for Aban managers. He will share some of them where, as a sub-brokers, how we can sell these strategies or sell these products. So he will give us some insights. And I request everybody not to go after the session is over. Please speak to, you will have opportunity to ask some questions if you have in your mind directly to Mr. Bhavik Thakkar. He may guide us in more better way. So Mr. Bhavik, over to you now. Thank you, Kuljit. Good evening, everyone. It's absolutely a pleasure to be with you. So I will share my screen and take you through the market link debenture as a product category, and collective we will try to understand that how this product category is relevant from the investor's perspective, in terms of the post-tax returns, because that is one of the recent changes that have happened in terms of the taxation for MLD as a product. Also in terms of, how the various products can fit into the requirement, right? So, Bhavik ji, yes, is it yes. possible for you to have a English and Hindi mix? दोनों करेंगे. यस यस आई ठीक वाज है. अबाउट टू Thank you so आस्क much. एंड Thank you so दोनों much. करेंगे. अगर सिर्फ हिंदी करना है वो भी कर सकते हैं, इंग्लिश करना है, हिंदी करना है, विल No, keep a mix. That's okay. यस यस पक्का वो दोनों मिक्स रखेंगे. सो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है कुलजीत जी? कैन यू जस्ट कंफर्म एंड व्हेन आई एम चेंजिंग Yes. स्लाइड इज इट मूविंग? Yes, ओके. yes, it is. It is. Yeah. Yes, thank you. So, in this presentation, I will first talk about, very briefly, I will talk about Avance Group, about 1 or 2 minutes, and then I will talk about market link debenture as a specific product. And ये session बहुत ही interesting होने वाला है, because 2-3 different things have happened with MLD as a product category. इसके ticket size कम होके 1 लाख रुपया पर debenture है. So that way it will give you a lot of retail ammunition, because हम हर बार new investors को attract करने की कोशिश करते हैं. तो I will take you through some of the products, and not only the products, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये products बनते कैसे हैं, right? आप जब एबांस को पैसा देते हो तो हम उस पैसों का क्या करते हैं और ये प्रोडक्ट कैसे मुमकिन होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा. तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू पे लॉट ऑफ अटेंशन टू टुडेज डिस्कशन. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद कि एबांस ग्रुप क्या है. हमारा जो ग्रुप है एबांस ग्रुप इज प्रमोटेड बाय मिस्टर अभिषेक बंसल. हमारा जो ब्रांड नेम भी है, अगर आप वो देखेंगे, ए कम्स फ्रॉम अभिषेक एंड BANS comes from Bansal. So Abhishek Bansal is a very young entrepreneur. I would say he is only 38, 39 right now. और उनके फादर मिस्टर प्रदीप बंसल भी कमोडिटीज मार्केट में काफी एक्टिव थे लेट 90s अर्ली 2000s तक. एंड देन अभिषेक ने 2005 में अपना करियर स्टार्ट किया. ऑफ कोर्स फैमिली में वो बिजनेस था, एंड दैट इज हाउ ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर अबाउट डेरिवेटिव्स. Because if you think India में डेरिवेटिव स्टार्ट हुए 2000 में इन इक्विटी मार्केट, एंड 2005 2003-4 में MCX was launched, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. सो अभिषेक ने उस टाइम डेरिवेटिव्स को बहुत समझा, और डेरिवेटिव्स को हम कैसे फंड मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं फ्रॉम अ हेजिंग परस्पेक्टिव. That became the DNA of the group over a period of time. He started conceptualizing, he started doing everything under a proprietary fund management structure. So when I say proprietary fund management, मतलब खुद के अकाउंट में नहीं, पर एक कंपनी फॉर्मेट में वो फंड मैनेजमेंट उन्होंने स्टार्ट किया. सो 2005 में एबांस कमोडिटी सेटअप किया, 2010 में एबांस ग्लोबल लिमिटेड लंदन में सेटअप किया, 2013 में मॉरिशस में एबांस इंटरनेशनल लिमिटेड सेटअप किया, 2017 में we started with the NBFC business in India. That's how Avance Finance came into picture. So 2005 till about 17-18, the focus of the group was only to manage its own money, have a deep amount of understanding on derivatives market, but उस derivatives knowledge को use करके खुद का पैसा manage करो, जिसको हम proprietary fund management बोलते हैं.
that even today continues to be the large revenue driver for our group. But simultaneously, he has also been investing in various other businesses. So, जैसे I joined this group in 2019 from Standard Chartered Bank to set up ABAN's investment managers, because अगर आपके पास you have the licenses, you have the knowledge, experience of dealing in a particular asset class. So why can't we become an asset management company over a period of time? That was the objective for me to join ABAN's group in 2019 from Stanchart Bank. Um, if I tell you about how we look like today in terms of our organization structure, ABAN's Financial Services Limited is already is a parent company, and parent company is already listed on BSE, NSE both. I think current market cap is about 12 to 1300 crore. जैसे मैंने बताया, हमारी एनबीएफसी है एबांस फाइनेंस, लंदन में हमारी ब्रोकिंग कंपनी है विच इज एन एफसीए रेगुलेटेड, जैसे इंडिया में सेबी रेगुलेट करता है वैसे वहां पे फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी रेगुलेट करता है लंदन में. सो वी हैव अ ब्रोकिंग कंपनी. वी हैव एन एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल इन मॉरिशस जहां पे हम लोग फंड्स ऑफर करते हैं. इंडिया में वी हैव ब्रोकिंग सेटअप, बट वी आर नॉट लाइक अ रिटेल ब्रोकर जैसे प्रभुदास लीलाधर है. वी आर नॉट यूजिंग अवर लाइसेंस टू ऑनबोर्ड रिटेल क्लाइंट्स एंड सो ऑन सो फॉरथ. Some of the key metrics, March 25 तक का जो financial year close हुआ था, we had a profit of about 109 crore. We had a net worth of 1165 crore. And in fact, first quarter 2026, FY26 का first quarter result we came out on last Thursday, Friday. We had a profit of almost about 32 crore for the first quarter of FY26. So that is about the group. Now, when I say ABAN's investment managers, जैसे मैंने बताया कि group started as a proprietary fund management activity group, and then over a period of time, we have also focused on managing public's money that is under ABAN's investment managers. So while today we will talk about market-linked debenture as a product category, but just for your information, we are also a SEBI registered PMS provider. So we offer growth and momentum PMS. एंड वी ऑल्सो ऑफर डॉलर डिनोमिनेटेड फंड्स जिसमें ग्लोबल आर्बिट्राज फंड, ये जो हमारा प्रोडक्ट सोल्यूशन है, दिस इज अवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट एंड दिस हैज बीन जनरेटिंग अबाउट 8% रिटर्न्स इन डॉलर टर्म्स. सो दिस ऑफ कोर्स इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड सोल्यूशन. बट टुडे आज हम बात करेंगे ज्यादा मार्केट लिंक डिबेंचर्स के बारे में कि क्या ये प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट कैटेगरी एंड हाउ डज इट वर्क एंड सो ऑन सो फॉर्थ. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये मार्केट लिंक डिबेंचर होता क्या है, राइट? हम सबको मेजॉरिटी डिबेंचर क्या है वो पता है, राइट? एक नॉर्मल डिबेंचर और मार्केट लिंक डिबेंचर में अंतर क्या होता है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, राइट? सो एक नॉर्मल डिबेंचर जैसे श्रीराम फाइनेंस, मन्नापुरम, मुथूट, बहुत सारे हमें पता है ये सब कैटेगरी में. So what is the key difference between a normal debenture and a market link debenture is that in a normal debenture, your coupon rate is fixed, right? You get 7%, 8%, 9%, depending upon the quality of paper. You get a fixed coupon that your returns are fixed. It is not variable. But in case of a market link debenture, वो प्रोडक्ट डिबेंचर है, बट मैंने उसका रिटर्न जो है वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट, चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, मैंने कोई स्टॉक या कमोडिटी के साथ लिंक कर दिया, तो उसका जो डिबेंचर का जो रिटर्न मिलेगा, जो कूपन मिलेगा, वो फिक्स्ड नहीं रहेगा. इट विल वेरी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग बेंचमार्क. मैंने अगर निफ्टी के साथ कोई प्रोडक्ट को लिंक कर दिया, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो एक लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है. इफ यू थिंक अबाउट इट, एनएवी इज अ फंक्शन ऑफ कि आपके फंड मैनेजर ने कहां-कहां स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया. अगर उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो एनएवी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगी. सिमिलरली मार्केट लिंक डिबेंचर में आपका जो रिटर्न्स है, मैं जैसे आपको कुछ प्रोडक्ट समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाउ दिस रिटर्न्स आर डिटरमिन्ड, एंड उसमें जो कंडीशनलिटी होती है कि निफ्टी के पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स या फिर फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड, फिक्स्ड इनकम और निफ्टी व्हिचएवर इज हायर. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस कि नॉर्मल डिबेंचर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, मार्केट लिंक डिबेंचर में आपका रेट ऑफ रिटर्न वेरीज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइन. दिस इज फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल डिबेंचर में आपकी कूपन पेमेंट की फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है कि आपको हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा. वेरेज इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर, because the returns are linked with that external benchmark, Nifty 50 as any stock or commodity, only when the tenure completes, you will know that Nifty ने या particular stock ने कितना return दिया है. Based on that, your entire coupon amount is paid
along with principal amount on maturity. तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि नॉर्मल डिबेंचर में कूपन जो है वो आपको डिफाइंड फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, यहाँ पे आपको कूपन जो है वो मेच्योरिटी पे मिलता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट कैटेगरी हम मार्केट लिंक डिबेंचर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इंडिया में अगर आप सोचेंगे जिसको हम इंडिया में एमएलडी बोलते हैं, उसको ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप सिंगापुर, दुबई, लंदन, हांगकांग चले जाओ, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड नोट्स या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे एमएलडी कोई नहीं समझेगा, वहां पे इसको स्ट्रक्चर्ड नोट्स या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इन दोज jurisdiction this particular product is offered like an OTC product, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट के तौर पे ऑफर करते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट इंडिया में है, वो एक ओटीसी प्रोडक्ट है। आप एफडी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बैंक एक प्रोमिसरी नोट लिख के देता है ना कि आपका इतना जमा है और आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट। So the way FD is a OTC or a promissory note in India, structured products or structured notes in global market is also an OTC product. तो आपको वो नोट्स के फॉर्मेट में मिलता है, पर इंडिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओटीसी मार्केट नहीं है। तो इंडिया में बहुत अच्छी ये डिबेंचर की सिस्टम है, एंड दैट इज हाउ आई थिंक सेबी ने भी 2011 में एमएलडी के ऊपर एक सर्कुलर निकाला है, उसमें भी ये प्रोडक्ट कैटेगरी को एमएलडी एज अ नाम दिया है। जैसे इंडिया में हम म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड कहते हैं, राइट। पर अगर आप यूरोप चले जाओ तो म्यूचुअल फंड को यूसिट्स कहते हैं, UCITS। वो म्यूचुअल फंड ही है, पर उसका उस रेगुलेटर ने नाम दिया है यूसिट्स। वैसे आप कुछ और जुरिस्डिक्शन में चले जाओ तो म्यूचुअल फंड को यूनिट ट्रस्ट बोलते हैं, एंड शायद इसीलिए हमारा जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड था यूटीआई, उसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से, यूनिट ट्रस्ट के नाम से यूटीआई म्यूचुअल फंड पड़ा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, मार्केट लिंक डिबेंचर को इंडिया में हम मार्केट लिंक डिबेंचर इसलिए कहते हैं क्योंकि 2011 में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें इस प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम मार्केट लिंक डिबेंचर रखा। इनकम टैक्स ऑल्सो सेक्शन 50AA में मार्केट लिंक डिबेंचर के नाम से इसको रिकॉग्नाइज करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, इंडिया में ओटीसी प्रोडक्ट्स कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे डिबेंचर एक बहुत अच्छी एफिशिएंट कैटेगरी है कि आपके डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटी क्रेडिट हो जाती है, इसलिए भी इस प्रोडक्ट को मार्केट लिंक डिबेंचर बोलते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये मार्केट लिंक डिबेंचर बनता कैसे है, राइट। इन्वेस्टर को तो ठीक है, मैं जो रिटर्न समझाऊंगा वो रिटर्न मिलता है, पर व्हाट गोज बिहाइंड द सीन, और आप सब जो है वो एक प्रोडक्ट गेट कीपर है, राइट। यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू टॉक टू द इन्वेस्टर। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर तो बोलेगा आप जहां बोलोगे मैं साइन कर दूंगा, पर आपको एज अ प्रोडक्ट गेट कीपर पता होना चाहिए कि आप जब ए बैंक्स को या कोई भी एमएलडी इशुइंग कंपनी को पैसा देते हो तो व्हाट गोज बिहाइंड द सीन, वो कंपनी क्या करती है, एंड हाउ डू दे जनरेट द रिटर्न्स दैट दे प्रॉमिस थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो कोई भी एमएलडी वर्ल्ड ओवर में, नॉट ओनली इंडिया, कोई भी एमएलडी जिसको स्ट्रक्चर नोट बोलते हो वर्ल्ड ओवर में, वहां पे दो कंपोनेंट होते हैं ऑफ द मनी दैट यू गिव। आप 100 रुपए अगर मुझे देते हो एज एन इशूअर, तो मैं उसको मोटा मोटी दो भाग में डिवाइड करूंगा टू जनरेट वॉट एवर इज माई टारगेटेड पे ऑफ। मैं आगे जैसे आपको प्रोडक्ट समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी एज एन इश्यूअर, एज ए मैन्युफैक्चरर, एक नीड है कि मैं एक फिक्स्ड कंपोनेंट से, अगर मैंने प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड ऑफर प्रोडक्ट ऑफर किया है, तो मैं एक फिक्स्ड कंपोनेंट से फिक्स्ड रिटर्न जनरेट करके आपको प्रिंसिपल प्रोटेक्शन दूं। और दूसरा जो कंपोनेंट है, अब सम अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ 100 goes into the derivatives to generate the nifty link return or a stock link return। मैं आगे आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट समझाऊंगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू पार्क दैट a market link debenture is a combination of fixed return and derivatives link return, correct। So now let us understand that हम जो products offer करते हैं और market industry में जो लोग product offer करते हैं, so we just like when you meet any investor, you try to do the risk profiling, whether client is a conservative, moderate or an aggressive investor, and based on his risk taking ability, risk appetite, you will decide which kind of product should be offered to him, right। Whether conservative, moderate or an aggressive, mutual fund में भी आप आई एम श्योर पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप वैसे ही करते हो, राइट। सो हमने भी वैसे किया है कि various products that we offer, we have also categorized them as moderate or an aggressive and very aggressive product category and so on and so forth। आप ये भी एक टर्म देखोगे मार्केट लिंक डिबेंचर में, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एंड नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड।
इस चीज को मैं अब क्लैरिफाई कर लूं बिफोर आई प्रोसीड एंड टेक यू थ्रू द प्रोडक्ट्स। प्रिंसिपल प्रोटेक्शन का एमएलडी में मतलब क्या होता है, इस चीज को हमें क्रेडिट रिस्क से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जब कोई भी डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे एमएलडी हो चाहे नॉर्मल डिबेंचर हो, आप एक जो इश्यूअर है, अगर आप एबैंस ग्रुप के एमएलडी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एबैंस ग्रुप का आप क्रेडिट रिस्क लेते हो, राइट। उसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एबैंस को क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है ना, वो चीज जुड़ी हुई है अंडरलाइंग इंडेक्स है। अगर मैं कोई निफ्टी लिंक्ड प्रोडक्ट ऑफर करता हूँ, लेट्स से मेरा निफ्टी का स्टार्टिंग पॉइंट 25,000 है और 18 महीने का प्रोडक्ट है, 18 महीने के बाद अगर निफ्टी 25,000 से नीचे है, समझो निफ्टी 22,000 पे बंद हुई फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकली, तो मार्केट 3,000 पॉइंट का नुकसान दे रहा है, करेक्ट, 18 महीने में। अगर ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है तो आप जो 1 लाख रुपया पर डिबेंचर दे रहे हो वो आपको वापस मिलेगा, मतलब आपको लॉस नहीं होगा। निफ्टी, अगर आपने निफ्टी म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में पैसा लगाया होता तो शायद यू वुड हैव लॉस्ट 3,000 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 12-13% के आसपास। बट इफ द प्रोडक्ट इज प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड यू विल नॉट लूज एनीथिंग। और उसके सामने अगर नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट है तो आपको निफ्टी जितना लॉस करता है वो मिलता है। पर मैं आपको जैसे आगे आगे प्रोडक्ट समझाऊंगा, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ प्रोडक्ट। बिफोर आई गो देयर, लेट मी जस्ट गिव यू द स्टैटिस्टिक्स कि अभी तक हमने 2019 से हम लोग ये एमएलडी प्रोडक्ट कैटेगरी को नर्चर कर रहे हैं, राइट। जितने भी प्रोडक्ट्स हमने अभी तक दिए हैं उसमें जो कंजर्वेटिव का टाइप प्रोडक्ट है, they have given around 12% CAGR return, moderates have given about 14% plus, and aggressive products जो मैं आपको समझाऊंगा, they have given average 18% return, right। इसमें और भी ज्यादा भी है, and some of them have given 15-16% also, the average is turning out to be about 18% returns, correct। so now let us understand, ये पहला प्रोडक्ट समझते हैं, ड्यूअल एडवांटेज, ठीक है। अभी मैं आप सब फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करते हो, यू नो यू बीन ऑन द इक्विटी साइड। मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं दैट ऑफ कोर्स एज अ हाउस, प्रभुदास लीलाधर का भी एक व्यू है ऑन द मार्केट, दैट यू नो देयर आल्सो ऑफ कोर्स देयर रिसर्च टीम हैज बीन वर्किंग ऑन दैट मार्केट कितना बढ़ेगा, यू नो कहाँ जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू अ लेमैन इन्वेस्टर, उसको एक एंजाइटी हमेशा रहती है, आई मीन गोइंग बाय द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, people are always anxious that you know whether my portfolio will grow or not, or maybe is this a right time to invest in equity, or should I go for fixed income, right। I'm sure आप सबको ये प्रॉब्लम आता ही होगा, you have to deal with this problem almost every day, right। so here is a product which we have given name as dual advantage. It is for 18 months. This is linked with Nifty 50 index. It is issued by, so एबैंस ग्रुप में मल्टीपल इशूइंग एंटिटीज है। अभी एबैंस ज्वेल्स लिमिटेड जो हमारी सेपरेट कंपनी है वो इशू करती है। इनफैक्ट नियर फ्यूचर में हमारी जो एनबीएफसी है, एबैंस फाइनेंस, दैट विल आल्सो स्टार्ट इशूइंग एमएलडी, ऑल द काइंड ऑफ एमएलडीज। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है सीरीज नंबर 145, जैसे हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया 6 ऑफ अगस्त को, सो लास्ट वीक वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट। उस दिन का क्लोजिंग निफ्टी था 24,574। सो दिस इज लाइक योर एंट्री पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल फिक्सिंग लेवल। ये जो 18 मंथ का टेन्योर है दैट विल गेट कंप्लीटेड बाय 25 जनवरी 2027। इस दिन का जो निफ्टी सेटलमेंट प्राइस होगा ये आपका एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। सो वी नो द एंट्री पॉइंट कि हमने 24,500 पे एंट्री की है, और ये दिन का जो निफ्टी होगा वो दैट इज गोइंग टू बी योर एग्जिट निफ्टी। सो व्हाट दिस प्रोडक्ट टेल्स यू इज दैट कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से 24,574 का जो हमारा 574 का जो हमारा एंट्री पॉइंट है, if Nifty at the end of 18 months generates 10% absolute or lower return including negative, हम में से किसी को पता नहीं है कि अगले 18 महीने में निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न देगा, नेगेटिव देगा, हाउ मच पॉजिटिव हाउ मच नेगेटिव वी डोंट नो। so here the scenario says that in case if Nifty was to give subdued return, निफ्टी का रिटर्न अगर 10% एब्सोल्यूट या उससे कम आता है इंक्लूडिंग नेगेटिव, तो ये प्रोडक्ट आपको मिनिमम 10% रिटर्न देगा। आपका 100 रुपया प्रिंसिपल, दैट मीन 1 लाख रुपया प्रिंसिपल प्लस मिनिमम 10,000 रुपीज एज रिटर्न विल बी गिवन। नाउ आप इसमें समझिए कि 10,000 या 10% जो है दैट इज एब्सोल्यूट रिटर्न, ये 18 महीने का रिटर्न है। अगर आपको सीएजीआर टर्म्स में देखोगे, एनुअलाइज्ड टर्म्स में,
तो इट इज 6.63%, राइट? दिस इज योर मिनिमम रिटर्न, ठीक है? बट निफ्टी का रिटर्न 10% से ज्यादा भी हो सकता है. So Nifty can generate, suppose if Nifty generates 10% to 25% in this range, then your investor will get actual Nifty return whichever is higher, right? दोनों में से जो ज्यादा है वो रिटर्न आपको मिलेगा. निफ्टी सही में 25% बढ़ गया तो यहाँ पे कैपिंग है, मतलब निफ्टी 25 से ऊपर भी शायद बढ़ सकता है, हमें नहीं मालूम है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. बट अगर निफ्टी 25% से ज्यादा 18 महीने में बढ़ा तो हम मैक्सिमम 25% रिटर्न देंगे, विच इज अ CAGR ऑफ 16.22%, करेक्ट? सो इफ यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, कि आप जब ये प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाते हो किसी को, तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कोई एसेट लोकेशन कॉल लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? आज अगर मैं आपके पास आता हूं एज अ क्लाइंट कि मुझे 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग करोगे, बट एट द एंड ऑफ द रिस्क प्रोफाइल you will have to take an asset location call for me, correct? You will have to tell me that look, out of 25 lakhs, let's put 15-20 lakhs into equities, or 5-10 lakhs into fixed income products, correct? And what might happen is, suppose आपने मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करवाया, and let's say the market didn't do anything for next 18 months. Suppose, let's say the tariff related issues India could not resolve, and some other issues came up, and therefore suppose our markets do not perform as it has not in last 1 year. If you see, it hasn't performed. और आगे भी ऐसे मैं आपको सिनेरियोस भी दिखाऊंगा कि इवन इन लास्ट 5-6 years while we are celebrating that हम 12,000 से 25,000 इंडेक्स हुआ, but then it was not a linear equation. बीच में ऐसे टाइम आए हैं where the market has gone into time wise correction, it has gone into price wise correction. So therefore आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने किसी का पैसा 1 साल पहले इक्विटी में डलवाया, एंड इफ टुडे द मार्केट्स आर लोअर, दोस इन्वेस्टर्स मस्ट बी टेलिंग यू दैट यार क्या गलत टाइम पे गलत एसेट लोकेशन कर दिया. इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड माय मनी इनटू फिक्स्ड इनकम, एटलीस्ट मुझे कुछ तो रिटर्न मिलता. उसका उल्टा भी हो सकता है. आपने बोला बार मार्केट बहुत कंजर्वेटिव है, चलो हम एक फिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में या एफडी, कॉर्पोरेट एफडी वगैरह में, एंड लेट्स से द मार्केट गोस टू द रूफ, राइट? एक अभी पिछले ही 1-1.5-2-3 साल में ऐसा हुआ है that in 18 months market has given 30-40% return also. There was a one way rally, right? So in both the scenario, investor will always be right. वो तो आपको ही बोलेगा कि बॉस आपने एसेट लोकेशन करके दिया है, राइट? आई एम श्योर आप लोगों ने सबने ये एक्सपीरियंस किया है. सो थिंक अबाउट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन टुडे, कि आज अगर मैं आपके पास आता हूँ एज अ क्लाइंट बन के कि मुझे 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आपको एक एसेट लोकेशन कॉल लेना पड़ेगा ना. उसकी कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट देखिए कि इफ निफ्टी डज नॉट परफॉर्म, इफ निफ्टी गोज इन अ टाइम वाइज और अ प्राइस वाइज करेक्शन, यू आर गिविंग हिम 6.63% पर एनम एज योर रिटर्न, ठीक है? समझ लीजिए कि आज आपने कॉर्पोरेट एफडी में पैसा डलवाया तो 8% मिलेगा मोटा मोटी. आई एम सेइंग इन जनरल, आई एम सेइंग, आई एम नॉट लुकिंग एट द हाई यील्ड बॉन्ड्स, बट मोटा मोटी अगर आप कॉर्पोरेट एफडी में डालोगे तो 8% मिलेगा, विच इज लाइक 1.5% हायर देन दिस, मोटा मोटी 1.5% हायर देन दिस. बट थिंक अबाउट इट कि अगर निफ्टी सही में चल गया तो आपको एफडी 8% ही देगी, पर ये आपको 16% तक रिटर्न दे सकता है. सो इफ यू थिंक फ्रॉम योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट अगर मार्केट नहीं चला तो मुझे 6.63 एफडी की कंपैरिजन में 1.5% कम मिलेगा, पर अगर मार्केट सही में चल गया तो आई विल मेक 16% ऑल्सो, वेर एज द एफडी विल नॉट मेक, राइट? एंड सपोज इफ द मार्केट गोज इन अ प्राइस करेक्शन, सपोज मार्केट यहाँ से भी 18 महीने में और गिर गया, तो in equity you would lose money, say in mutual funds, ETF और जो भी है, you will lose money, but here you will not lose money, you will at least get 6.63% minimum coupon, right? So now let me explain you, ये तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि बॉस मार्केट चला तो मार्केट का रिटर्न, मार्केट नहीं चला तो फिक्स डिपॉजिट जैसा रिटर्न, करेक्ट? अभी मैं आपको ये समझाता हूं कि एबैंस ये प्रोडक्ट बनाता कैसे है, इसको हम कैसे मुमकिन करते हैं. हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, right? So you should understand that when your client gives us 1 lakh rupee per debenture, ठीक है, पर उसको 100 रुपए से समझते हैं कि out of 100 what do we do to make this product possible. So पहले 100 रुपए में से इस प्रोडक्ट के लिए, ये जो रेशियो मैं आपको समझा रहा हूँ वो हर अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में हमारा प्रॉमिस अलग है. ये प्रोडक्ट में हम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? देयर आर 2 promises we are giving. My first promise is that at any point in time, even if Nifty goes zero,
I will still give you 10% minimum coupon, right? 1 लाख रुपए का रिटर्न, sorry, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल plus 10,000 rupees of return is the minimum that I am guaranteeing you. So this is my promise number one. And the promise number two is, if Nifty is between 10 to 25%, ओके इस रेंज में है, तो आई विल गिव यू एक्चुअल निफ्टी रिटर्न विच एवर इज हायर, करेक्ट? तो अभी हम दोनों प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए फंड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैं आपको वो समझाता हूँ। आपका क्लाइंट जब 100 रुपया ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है, तो 1 लाख करता है इन्वेस्ट, मैं 100 से समझाता हूँ। तो 100 में से पहला प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए वी विल यूज 92 रुपीज आउट ऑफ 100 फॉर अवर कोर एक्टिविटी। ये कोई भी, चाहे नॉट ओनली एवेंस, आप कोई भी और एमएलडी अगर आप किसी को ऑफर करते हो या ग्लोबली भी करते हो, तो यही गणित रहता है कि एक बड़ा कंपोनेंट जो है डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ द बोरोवर, ठीक है, बड़ा जो कंपोनेंट है दैट गोज इन फॉर द कोर एक्टिविटी, मतलब उससे मुझे फिक्स रिटर्न जनरेट करना है। तो जैसे जो हमारी इशुइंग कंपनी है, जैसे इस केस में अभी एवेंस ज्वेल्स इज द इशुइंग कंपनी, ठीक है, जैसे मैंने बताया इस कंपनी का मेन एक्टिविटी क्या है, कोर एक्टिविटी क्या है। तो एवेंस ज्वेल्स लिमिटेड जो है वो बुलियन में और बेस मेटल में डील करता है, इसमें हम लोग आर्बिट्राज करते हैं। दूसरा, अगर आप कोई गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में किसी को इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को भी गोल्ड सिल्वर प्रोक्योर करना पड़ता है, राइट? आपका क्लाइंट जब इन्वेस्ट करता है तो सामने कोई तो काउंटर पार्टी चाहिए ना बेचने के लिए। तो एवेंस ज्वेल्स लिमिटेड वर्क्स विद ऑलमोस्ट 8-9 एएमसीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ में काम करता है फॉर देयर गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ। उसका जो मार्केट मेकिंग है वो ये कंपनी करती है, दैट इज इट्स कोर एक्टिविटी। मतलब उसका मेन काम ये एक्टिविटी करने का है, ठीक है, जिसमें उसका प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट से समझो ये 100 रुपए में से जो 92 रुपीज है, वो मैंने अज्यूम किया कि मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके इन्वेस्टर से मैं बोरो कर रहा हूँ। मतलब एवेंस ज्वेल्स बोरो कर रहा है आपसे 92 रुपीज, और वो 92 रुपीज जब वो अपनी कोर एक्टिविटी में डालता है, जो उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी है, वहां पे वो 15-18% रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, तो उसको 12% पे बोरो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 100 रुपए में से 92 रुपीज को अगर आप 12% से ग्रो करवाओगे, अगर आप मैथ करोगे, तो 18 महीने में, क्योंकि ये 18 महीने का प्रोडक्ट है, ये वैल्यू बन जाएगा 110 रुपया। तो उससे मैंने मेरा पहला प्रॉमिस फुलफिल कर दिया कि 100 रुपया प्रिंसिपल प्लस 10 रुपया मिनिमम रिटर्न जो मुझे आपको वापस करना है एब्सोल्यूट, वो मैंने कर दिया। अभी मेरे पास बाकी 8 रुपए बच गए। 8 रुपए में से समझो मेरा 2 रुपया खर्चा है, जिसमें मेरा डिस्ट्रीब्यूटर को अपफ्रंट कमीशन भी आ गया, ठीक है, उसमें मेरे लीगल एक्सपेंसेस भी आ गए, कंप्लायंस कॉस्ट भी आ गया, तो 2 रुपया समझो मेरा वो चला गया, तो मेरे पास 6 रुपया बच गया। नाउ दिस 6 rupees इज वेयर अवर डेरिवेटिव्स मैनेजमेंट कैपेबिलिटी कम्स इनटू पिक्चर, कि हम ये 6 रुपया यूज करेंगे टू हेज अवर पोजीशन बिटवीन 110% टू 125%, राइट? हम ये प्रोडक्ट कैटेगरी में एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये डेरिवेटिव्स मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आता है, राइट? सो द द पोजीशन इज मैनेज्ड इन सच अ वे दैट अगर मार्केट, अगर 100 ये 110% से नीचे गया, मतलब मार्केट ने अगर और नेगेटिव रिटर्न दिया या सबड्यूड रिटर्न दिया, तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो 6 रुपया जो है, भले वो जीरो हो जाए, पर अगर मार्केट मान लीजिए 15% नेगेटिव बंद हुआ, तो आप म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में लगाते 15% आपकी एनएवी गिर जाती, यू वुड हैव मेड सफर्ड अ लॉस ऑफ 15 रुपी ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 100। तो 100 के सामने आपको 85 पे अटकते, यहाँ पे वो 100 आपको 110 रुपया बना के दे रहा है मिनिमम, राइट? दैट इज हाउ द डेरिवेटिव्स पोजीशन इज। एंड सेकंड थिंग इज, अगर मार्केट सही में चल गया 10% से 25% के बीच में है, तो दिस 6 रुपी विल देन गिव अस द एडिशनल रिटर्न थ्रू द डेरिवेटिव्स। जो ऊपर का मुझे 15 रुपया रिटर्न जनरेट करना है, 10 के ऊपर का 25 माइनस 10, दैट आई विल गेट इट थ्रू द डेरिवेटिव्स, राइट? एंड बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस, अगर आप रिकॉल करेंगे मैंने जहां से शुरू किया कि हमने डेरिवेटिव्स मार्केट को हमारा डीएनए बना हुआ है, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स एंड using the derivatives for generating returns is our forte, and that is how we will deploy it into this. मैं ऐसे एक सेमिनार में बात कर रहा था, और एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का ही सेमिनार था, तो दे somebody asked me कि यार आप तो डेरिवेटिव्स के थ्रू रिटर्न जनरेट करने की बात कर रहे हो, एंड डेरिवेटिव्स आर वेरी रिस्की, सेबी का स्टडी बोलता है दैट 93% ऑफ द पीपल
who deal in derivatives, वो लोग पैसा लूज कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा जो मैं आपको भी पूछता हूँ कि आप सब म्यूचुअल फंड में डील करते हो, करेक्ट? म्यूचुअल फंड्स में एक प्रोडक्ट कैटेगरी है इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स। तो मैंने पूछा उनसे कि आप जानते हो? तो बोले हाँ हम जानते हैं। इक्विटी आर्बिट्राज का फंड मैनेजर जो है, अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस अभी 2000 पे चल रहा है और उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2020 पे चल रहा है, तो वो कैश में रिलायंस को बाय करेगा और फ्यूचर में 2020 में 20 रुपए में बेच देगा। और ये करने से इवन इफ द स्टॉक प्राइस गोज टू 1900 ऑन मेच्योरिटी, या प्राइस अगर बढ़ के 2100 भी हो जाता है, उसको उसका 20 रुपए जो प्रॉफिट है वो मिलेगा मिलेगा। मैं बोला वो बहुत अच्छी बात है। तो आपके इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने एक्चुअली क्या किया, उसने डेरिवेटिव्स यूज किया। जब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2020 पे बेचता है, दैट मींस ही इज डीलिंग इनटू डेरिवेटिव्स। बट हैज ही डन व्हाट हैज ही डन डिफरेंटली कंपेयर टू, जो सेबी की स्टडी के हिसाब से 93% ऑफ द पब्लिक आर लूजिंग मनी इन डेरिवेटिव्स। तो वो क्या अलग किया आपके फंड मैनेजर ने जिससे ही इज नॉट लूजिंग? बिकॉज आप देख लीजिए इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड का एनएवी कहाँ नेगेटिव होता है, करेक्ट? वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज योर इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर used the derivatives for hedging activity. He was not taking a speculative call. वो हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स यूज कर रहा था, एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट लूजिंग मनी व्हेन ही इज एज अ फंड मैनेजर ही इज यूजिंग फॉर अ हेजिंग एक्टिविटी। सिमिलरली मार्केट लिंक डिबेंचर का जो फंड मैनेजर यहाँ पे ये प्रोडक्ट में जो 6 रुपया मैंने बताया, तो मेरा एक टारगेटेड इनिशिएटिव है। आप समझिए कि ये प्रोडक्ट को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अनलिमिटेड रिटर्न मिलेगा। मैंने एक लिमिटेड दायरे में मेरी एक्टिविटी की है और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे अगर निफ्टी बंद होता है तो मैं आपको एक्चुअल निफ्टी का रिटर्न दूंगा। और मार्केट अगर नीचे गया तो मेरा भले 6 रुपया जीरो हो जाए, बट 100 विल बिकम 110। देयरफॉर आई विल बी एबल टू फुलफिल माय फर्स्ट प्रॉमिस एज वेल एज द सेकंड प्रॉमिस, अगर मार्केट सही में चल जाता है तो, राइट? सो इफ यू थिंक अबाउट इट, मार्केट लिंक डिबेंचर इज अ साइंटिफिक वे ऑफ जनरेटिंग टारगेटेड पे ऑफ, राइट? अगर मैं और भी आगे जो मैं प्रोडक्ट समझाऊंगा, you'll realize that there is a merit of looking at this product from a client perspective। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी फेस वैल्यू इसका 1 लाख रुपए है, राइट? So therefore it's not too pricey also। Lot of our channel partners are actually acquiring new clients by way of talking about market link debenture, right? Because आप कितनी बार वही SIP की बात करोगे और नए क्लाइंट को acquire करने की कोशिश करोगे, right? People also want something differentiated in their portfolio, and this kind of products will help you, penetrate into that। So अभी पहले हमने ये dual advantage product समझ लिया। Now let's go to another product which is called Nifty Maximizer, right? So अभी जैसे पहला प्रोडक्ट समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी थोड़ा समझाने में, बिकॉज टर्मिनोलॉजी मुझे समझानी थी। अभी आगे जितने प्रोडक्ट है वो थोड़ा आपके लिए भी इजी है समझना, मेरे लिए भी थोड़ा समझाना इजी है। तो जो हमने ड्यूअल एडवांटेज ये जो प्रोडक्ट समझा, दिस वाज फॉर समबडी हु वाज वेरी कंजर्वेटिव, जिसको वो डर लगता है मार्केट में और सामने कुछ ना कुछ मिनिमम रिटर्न भी चाहिए, राइट? तो उनके लिए ड्यूअल एडवांटेज प्रोडक्ट है। बट अभी समझ लीजिए कि कोई थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है जिसको लगता है कि हाँ अभी मार्केट इज एट द नियर बॉटम और मुझे यहाँ से थोड़ी तेजी लगती है, आई वांट टू इन्वेस्ट, आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट rather than just being fearful। तो those investors can consider Nifty Maximizer। This product is also 18 months, again this is also issued by Evans Jewels, Nifty के साथ linked है। So से वी केम आउट विद दिस प्रोडक्ट ऑन लास्ट फ्राइडे, 8 तारीख को हमने ये लॉन्च किया था, लास्ट फ्राइडे को, सीरीज नंबर 146। सो ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि लेट्स से वी स्टार्टेड एट 24,500, 24,500 से अगर 18 महीने के बाद में इफ निफ्टी इज गिविंग एनी नेगेटिव रिटर्न, यू विल नॉट गेट एनी नेगेटिव रिटर्न। आपको जीरो रिटर्न मिलेगा, आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा, जिसमें ये प्रिंसिपल प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, इट इज प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? यू स्टार्टेड एट 24,500, निफ्टी एंड्स एट लेट्स से 22,000 या उससे भी कम, कुछ भी, एनीथिंग एनी नेगेटिव, because the product is principal protected, you are still making zero return, that means you are not making negative returns, right? And as a bargain, यहाँ पे निफ्टी ग्रोज अप टू 20% इन दिस प्रोडक्ट 18 मंथ्स में, यू आर गेटिंग 140% पार्टिसिपेशन। मतलब निफ्टी आपका आपका समझ लीजिए कि 18 महीने में सिर्फ एब्सोल्यूट 10% बढ़ा,
तो this product will give you 14% return, right? Which is a CAGR of 9.26. मैक्सिमम इज 20%. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिंग है, ये निफ्टी कैन गो 30, 40, 50% ऑल्सो बढ़ सकता है, बट वी विल नॉट गिव मोर देन 28 रुपीज एज एब्सोल्यूट रिटर्न. 28% जो है वो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है 18 महीने का. CAGR इज अबाउट 18.16%, राइट? सो ये प्रोडक्ट का अट्रैक्टिवनेस किसको है? those investors who are bullish about the market, जिनको लगता है कि बॉस मुझे मिनिमम रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, आई वांट टू मेक मोर मनी. एंड ठीक है, अगर मार्केट गिर गया तो मुझे कैपिटल में मूडी में नुकसान नहीं होना चाहिए. आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स सेइंग दैट, राइट? मेरी कैपिटल शुड रिमेन प्रोटेक्टेड. So in that case, this product comes to a rescue that you will not suffer any loss. It's like a principal protected Nifty, right? In fact, आप अलग नजरिए से सोचिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अभी तक पैसा बनाया पिछले 5 साल में. सम पीपल वुड हैव 12,000, 13,000, 14,000 निफ्टी पे इन्वेस्ट किया होगा. तो ऐसा हो सकता है कि अभी उस इन्वेस्टर को आप इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कन्वर्ट कर दो. अभी समझो मार्केट अभी 24, 500, 700 के 600 के लेवल पे चल रहा है, और ये प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, दैट बिकम्स लाइक योर स्टॉप लॉस लेवल. अगर मार्केट इससे नीचे गया तो आपको वैसे भी प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है, और मार्केट यहां से ऊपर गया तो आपको 1:1.4 का रेशियो है. निफ्टी यहां से 1% बढ़ेगा, आपको 1.4 मिलेगा, राइट? व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड, जैसे कोई एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा लगाते हो, तो नॉर्मली आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? दैट आई वांट माय फंड मैनेजर टू आउट परफॉर्म. The alpha has to be generated, right? I mean, everybody is in search of alpha. How much more than market have you generated, right? So in that context, when you look at this product, when I say 140% is the participation, मतलब हर 1% निफ्टी देगा उसको, ये प्रोडक्ट आपको 40% से आउट परफॉर्म करेगा, राइट? इफ निफ्टी गिव्स 20% रिटर्न, दिस प्रोडक्ट विल गिव यू 28. इट इज बाय फॉर्मूला, करेक्ट? आप जब कोई म्यूचुअल फंड में, आप, मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट मैं आपको ये भी आगे ये भी समझाता हूं कि ये प्रोडक्ट के लिमिटेशंस क्या है, राइट? पर आप सोचिए कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फंड मैनेजर कोई टेबल बना के देता है कि निफ्टी इतना बड़ा तो मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा. बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर, दैट यू मे नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट निफ्टी, बट गिवन दिस फॉर्मूला बेस्ड ट्रांजेक्शन, आपको पता है कि निफ्टी 5% बढ़ा तो मुझे इंटू 1.4 मुझे 7% रिटर्न मिलेगा. आपको पता है कि निफ्टी अगर नेगेटिव गया तो मुझे प्रिंसिपल प्रोटेक्शन मिलेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द प्रोडक्ट इज डिजाइंड, राइट? इट इज अ प्रिडिक्टेबल पैसिव. निफ्टी भी पैसिव है, राइट? आप पैसिव म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, बट व्हाई एम आई सेइंग दैट ये प्रिडिक्टेबल पैसिव है? बिकॉज फॉर एवरी growth, what percentage growth in the nifty, how much will this product give you is a function of formula. सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि निफ्टी मिनिमम 20% और निफ्टी विच एवर इज मिनिमम इंटू 1.4x, राइट? तो आप निफ्टी को 40% से आउट परफॉर्म कर रहे हो, वो भी प्रोडक्ट डिजाइन के थ्रू, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टैक्सेशन, बिकॉज इन्वेस्टर्स बोलेगे बॉस मेरे को तो पोस्ट टैक्स रिटर्न में इंटरेस्ट है, राइट? तो अभी क्या है, मार्केट लिंक डिबेंचर का जो टैक्सेशन है, कोई भी प्रोडक्ट हो, मार्केट लिंक डिबेंचर का टैक्सेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 50AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. जहां पे आपका डेट म्यूचुअल फंड कवर हुआ, वही इनकम टैक्स सेक्शन 50AA में एमएलडी भी इंक्लूडेड है, करेक्ट? सो वो सेक्शन क्या बोलता है कि एनी रिटर्न फ्रॉम मार्केट लिंक डिबेंचर इन एनी फॉर्म, आप चाहे उसको प्री मेच्योर एग्जिट करो, चाहे आप उसको मेच्योर होने दो, any kind of returns that you generate from market link debenture will be taxed as per the slab rate of the investor. तो इन्वेस्टर जो स्लैब में फॉल करता है उस स्लैब में आपको टैक्स लगेगा. अभी यहाँ पे बहुत अच्छी इंजीनियरिंग आती है, एंड यू नो आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो क्या बोलते हैं कुछ
Sir, you are mute, sir. Sorry, can you hear me? Yes, sir. Yes, yes. I'm sorry. I think there was some technical glitch. Uh, Yes, sir, you so are audible, sir. ओके 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 राइट सॉरी सो मैं आपको टैक्सेशन के बारे में समझा रहा था दैट द ब्रेड विनर इन द फैमिली कुड बी इन अ 30% टैक्स ब्रैकेट बट इफ एनी अदर फैमिली मेंबर इज इन अ लोअर टैक्स ब्रैकेट और अभी तो इनकम टैक्स बोलता है कि 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम होगी एज पर द न्यू टैक्स रेजिम यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स उसका मतलब क्या हुआ अगर कोई बंदा 30% टैक्स ब्रैकेट में खुद है बट अगर वो अपने फैमिली मेंबर के नाम पे इन्वेस्टमेंट करता है जैसे वाइफ वगैरह वाइफ या किसी के नाम पे अप टू 12 लैक्स ऑफ इनकम वो एमएलडी से जनरेट करेंगे उनको 1 रुपया टैक्स भरने की जरूरत नहीं है करेक्ट एंड आपको मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दूं कि अगर उसी पर्सन के नाम से जिसका लोअर टैक्स ब्रैकेट में है अगर आप उसको इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हो तो आपको 20% या 12.5% और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको भरना पड़ेगा वो 1.25 लाख रुपए पहला अलाउड है उसके ऊपर में भरना पड़ेगा क्यों भरना पड़ेगा अगर इनकम 12 लाख से कम है तो भी बिकॉज दे आर ऑल टैक्स्ड एज अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन 20% एंड 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर स्पेशल रेट पर जब मैं बोलता हूं कि एमएलडी का इनकम पूरा बेस इनकम काउंट होगा दैट मींस यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अप टू 12 लाख ऑफ रुपीस बट लेट्स से कि आपके सभी इन्वेस्टर 30% टैक्स ब्रैकेट में वो बोलते हैं मैं तो मेरे खुद के नाम से ही इन्वेस्टमेंट करूंगा तो देन लेट्स लुक एट कि हाउ दिस प्रोडक्ट विल वर्क तो मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इक्विटी ईटीएफ में या कोई म्यूचुअल फंड में किया या खुद मैनेज किया पोर्टफोलियो मैनेज किया लेट्स से यू जनरेटेड 20% रिटर्न तो 20% रिटर्न वो जब इन्वेस्टर जनरेट करता है उसमें आप 12.5% कैपिटल गेन भरते हो तो आपका 2 रुपया 50 पैसा टैक्स में चला जाता है यू आर मेकिंग 17 रुपी 50 पैसा एज पोस्ट टैक्स रिटर्न फ्रॉम डायरेक्ट निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स या म्यूचुअल फंड वगैरह कहीं से भी आप जनरेट करते हो करेक्ट अगेंस्ट दैट 20% ग्रोथ इन निफ्टी दिस प्रोडक्ट बाय डिजाइन इज गिविंग यू 28 अभी 28% सेक्शन 50 AA के हिसाब से आप 30% टैक्स भी भरते हो यू आर पेइंग 8 रुपी 50 पैसा एज टैक्स राइट so you are getting 19 rupee 50 paisa as post tax compared to a 17 rupee 50 paisa you will get in a mutual fund you're getting 90 2 रुपया 2% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है even after paying 30% tax right so दो जैसे टिकट साइज कम है 1 लाख रुपया है तो ये तो सबके पोर्टफोलियो में जा सकता है एंड विद इन द इन्वेस्टर बेस जो कस्टमर्स का टैक्स कमी है उसमें तो इट्स अ नो ब्रेनर कि भाई मेरा जीरो टैक्सेशन में जाता है 12 लाख से कम की इनकम है तो 20% निफ्टी में मेरे को फिर भी 12.5% भरना है यहाँ पे 28% में पूरा पोस्ट टैक्स लेके जा रहा हूँ जीरो टैक्स बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 50 AA so if you think about it uh, it makes lot of sense because there is a predictability and also there is a better tax efficiency right so let me tell you the limitation of mld before I explain you many more products and कुछ आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स भी है पर मैं आपको वो समझाऊं उससे पहले मैं समझाता हूं कि क्या एमएलडी जो है वो इज इट अ कंपटीशन टू म्यूचुअल फंड और इज इट अ कॉम्प्लीमेंट टू म्यूचुअल फंड सी एमएलडी का लिमिटेशन क्या है दैट once you invest in this product although ये डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है आपके एग्जिस्टिंग डीमेट में क्रेडिट होता है इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डीमेट टू द अदर डीमेट अकाउंट लाइक अ सेल ट्रांजैक्शन while technically it is possible but when you sell this product आपको इन्वेस्टर को बोलना चाहिए कि बॉस इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया यू कांट कम आउट ऑफ इट ओके आप इसमें से एग्जिट नहीं कर पाओगे and this we are requesting to prevent any kind of a mis-selling or a wrong understanding about the product that मुझे कभी भी निकलना है मैं निकल सकता हूँ so there is a defined maturity for each product okay when you invest you know कि मेरा maturity date जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है this is the redemption date 30th January 2027 is the redemption date 25 जनवरी का निफ्टी will be a closing just within 5 working days 30th जनवरी को इस प्रोडक्ट का निफ्टी मैक्सिमाइजर का पे आउट हो जाएगा राइट so therefore you should make it very clear that आप इसमें इन्वेस्ट करोगे आपका अगर 18 मंथ्स का होराइजन है तभी आप इन्वेस्ट करो आप ऐसे मत सोचो that you can exit on a click of a button at any point in time there may not be any secondary transaction right that is limitation number one of course मैंने टैक्सेशन आपको समझाया है
See, therefore, if you think about it, when you are blending this into the portfolio, for example, let's say if your client wants to invest 20 lakhs in a large cap strategy, right? तो ऐसा हो सकता है कि 20 lakhs में से 10 lakhs आप large cap म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करिए या ETF इंडेक्स फंड सिलेक्ट करिए एंड 10 lakhs आप MLD में डालिए, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए लेट्स ड्रॉ 2-3 सिनेरियोस। मार्केट अगर नहीं चला, समझो मार्केट 15% नेगेटिव रिटर्न देता है, तो आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 15% नेगेटिव आएगा, 10 लाख में 1.5 लाख का लॉस आएगा। पर यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है, तो दोनों मिला के लॉस आपका 75,000 का रह जाएगा, करेक्ट। अगर मार्केट ने थोड़ा सबड्यूड रिटर्न दिया, मतलब मान लीजिए कि मार्केट ने 20% तक ही रिटर्न दिया, तो आपको वो इक्विटी म्यूचुअल फंड 20% देगा, बट ये सामने 28 देगा, करेक्ट। सो यू आर एनहांसिंग द पोर्टफोलियो रिटर्न, राइट। और जिसका टैक्सेशन आता नहीं है उसको तो चांदी ही चांदी है, जितना रिटर्न मिला वो पूरा पोस्ट टैक्स, करेक्ट। एंड अगर मान लीजिए कि मार्केट सपोज 30-40% रिटर्न दे देता है 18 महीने में, इट इज पॉसिबल दैट अगर बहुत टाइम तक मार्केट सप्रेस्ड है, देन इट मे बाउंस वेरी फास्ट एंड इट मे गिव यू 15-20% 30% रिटर्न। इन दैट केस इक्विटी म्यूचुअल फंड विल गिव यू 30-35 एंड दिस प्रोडक्ट विल गिव यू 28। सो इफ यू थिंक एज अ ब्लेंड कि मैं वो भी करूंगा, दूसरा लिमिटेशन मेरे प्रोडक्ट का है कि ये लिक्विड प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड कभी भी ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन या स्टॉक्स आप बेच सकते हो, इसको बेच नहीं सकते। सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट इट इज अ ब्लेंड। ये प्रोडक्ट, दिस इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग टू म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इक्विटी स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स पोर्टफोलियो एंड PMS एक्सेट्रा। दिस इज नॉट competing at all with those product category. But as a financial advisor, आपको ये सोचना है, the investors are very smart and they are looking at a distributor alpha. मैंने बहुत डिस्ट्रीब्यूटर से ये सुना है that gone are the days where people were saying मुझे फंड मैनेजर ने क्या अल्फा जनरेट करके दिया। because why this is important is, ये आई ओपनिंग इसलिए है क्योंकि आज अगर आप देखोगे लार्ज कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में almost 60% plus kind of investment is happening into direct plan as well as it is happening into index funds and ETF। अगर इन्वेस्टर को भरोसा होता कि मेरा लार्ज कैप का फंड मैनेजर मुझे अल्फा जनरेट करके देता, then this may not have been the equation, right? 65-70% इन्वेस्टमेंट आपके ETF इंडेक्स फंड में नहीं होते, right? It would have continued to be in the regular plan of the actively managed portfolio. So therefore the responsibility now lies on the distributor कि बॉस डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कैसे एसेट लोकेशन करके, हाउ, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर एडिंग टू माय पोर्टफोलियो, right? So think from this point of view that if you blend this product with mutual fund and for a different scenario, the combination of the two will actually give you a lot of reasons also for you to, show your performance as well, right? And the good thing is, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देयर इज नो सेपरेट फंड मैनेजमेंट फीस, राइट। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है, जो एंट्री लेवल है आपका निफ्टी का वो डेट क्लियर है, जो एग्जिट लेवल है वो डेट क्लियर है, उसका जो फॉर्मूला वो है वो क्लियर है कि कैसे ये कैलकुलेट होता है, राइट। देयर इज नो डिडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फीस, एनी काइंड ऑफ एन एक्सपेंसेस, राइट। whatever fees that we pay to the channel partners, that is inbuilt into the calculation, right? So this is another USP and a talking point कि मार्केट से बहुत सारे लोगों से सुना है कि यार ये नो मार्केट तो नीचे जा रहा है, मैं फंड मैनेजमेंट फीस भी चुका रहा हूँ। आई एम श्योर आप भी रेजोनेट कर पाते होंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मतलब क्लाइंट्स ने ऐसा भी बोला है कि बॉस मेरा तो पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, तुम्हें तुम्हारा फीस मिल रहा है पर मेरा तो पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, करेक्ट। सो हियर एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड, डेट बेस्ड कि इस दिन का निफ्टी इज माय एंट्री पॉइंट, दिस डेट का निफ्टी इज माय एग्जिट पॉइंट, एंड देयर इज नो सेपरेट लीकेज by way of the fund management fee. So that is also one of the talking points. Now when, let me explain you कि हम ये प्रोडक्ट मुमकिन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले प्रोडक्ट में बताया था 92% goes in for core activity, बिकॉज वहां पे मैं मिनिमम कूपन भी गारंटी कर रहा था 10% का। यहाँ पे देर इज नो मिनिमम कूपन गारंटी, देर इज अ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। तो उसको करने के लिए 100 रुपए में से 85 रुपीज वी विल यूज फॉर कोर एक्टिविटी। सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि 85% अगर 12% से ग्रो करता है मिनिमम, हम लोग तो 12 से ज्यादा जनरेट करते हैं, सो देयरफॉर द कंपनी मेक्स 3-4% एज नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोल दो या प्रॉफिट मार्जिन बोल दो, बिकॉज कंपनी 12% पे पैसा बोरो करेगी तो चैरिटी के लिए तो करेगी नहीं, राइट। इट विल ऑल्सो मेक मनी, एवेंस ज्वेल्स विल ऑल्सो मेक मनी। और आप उसके लिए उसकी बैलेंस शीट स्टडी करिए, जो क्रेडिट रिस्क है, एवेंस को पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके लिए आप हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टडी करिए एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट। सो मैं अभी वो एक्टिविटी में नहीं जा रहा हूँ,
वो हम लोग डेफिनेटली बाद में समझ सकते हैं, बट लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट. सो 100 रुपए में से 85 रुपीज वी विल डिप्लॉय फॉर कोर एक्टिविटी. दैट 85 विल ग्रो टू 100 रुपीज. सो आई विल गिव यू प्रिंसिपल प्रोटेक्शन इन दिस. बाकी का मेरे पास में जो 15 रुपए बच गया, उसमें से 2 रुपया समझो मेरा अपफ्रंट कॉस्ट है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर का और मेरा लीगल सब कंप्लायंस कॉस्ट मिला के. जो 13 रुपीज बचता है, दैट 13 रुपी वी विल डिप्लॉय इट इनटू डेरिवेटिव्स बिटवीन द एंट्री पॉइंट एंड दिस मैक्सिमम रिटर्न कैटेगरी टू जनरेट द 28 रुपीज. अगर निफ्टी सही में 20% बढ़ गया तो वो जो 13 रुपीज है, 13 रुपया 13, दैट विल हेल्प मी जनरेट एडिशनल 15 टू मेक इट एट 28, करेक्ट. एंड माई पोजिशन इज इन सच ए वे दैट अगर मार्केट डब्बा हो गया तो यू लेट द 13 रुपी बिकम जीरो. आई शुड नॉट लूज एनीथिंग मोर देन 13, so that my 85 will grow to 110, sorry 100, and I will be able to offer you principal protection, right? So this is how this product works, the Nifty Maximizer. Now यही कॉन्सेप्ट में हम लोग काफी स्टॉक लिंक प्रोडक्ट्स भी करते हैं, राइट. सो जैसे हमने रिसेंटली ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर किया था, एसबीआई का प्रोडक्ट किया था. दिस वाज फॉर अ 24 मंथ्स टेन्योर. जो निफ्टी मैक्सिमाइजर था दैट वाज फॉर 18 मंथ्स, दिस वाज फॉर 24 मंथ्स. और हमने एंट्री की थी 1 जुलाई को. 820 रुपी वॉज द प्राइस. सो व्हाट दिस प्रोडक्ट टेल्स यू इज दैट ऑन द डाउन साइड, अगर एसबीआई का स्टॉक 2 साल के बाद में डाउन जाता है, यू हैव प्रिंसिपल प्रोटेक्शन. बट ऑन द अपसाइड यू हैव 155% पार्टिसिपेशन. जो पिछले वाले निफ्टी मैक्सिमाइजर में 140% पार्टिसिपेशन था, वो बढ़ के यहाँ पे 155% है, 155%. सो इफ यू सी, if the SBI का stock indeed goes up 20%, 25% from entry level, 1025 तक अगर जाता है, वो भी 2 साल में, you will make 25 के सामने stock will make 25, you will make 38.75, 1.55 times of SBI, which is a CAGR of about 17%, right? Now of course हमने ये product इसलिए launch किया था because we as a house believe that there is lot more opportunity in the PSU banking space. I'm sure आपने भी बहुत fund manager से सुना होगा, and of course Prabhudas Leeladhar has research coverage also, so I think they can also share with you their own product note on their own stock note, that उनका क्या thought process है about SBI as a stock, right? Can it really grow this much? In fact आप लोग तो वो रिसर्च रिपोर्ट यूज कर सकते हो कि हाँ बॉस, हमें भी लगता है 25% तो यहाँ से बढ़ सकता है 2 साल में. Then of course one option is that either you buy the stock directly, or the other is you buy this MLD which is linked with that stock. कि अगर stock बढ़ गया आपका सही में, you will make 1.55 times the participation, right? So this is the SBI link product. तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया, they were all principal protected products. हम लोग काफी नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट भी करते हैं, तो मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ कि हम क्यों करते हैं. जैसे मैंने आपको निफ्टी मैक्सिमाइजर 140% पार्टिसिपेशन समझाया था 18 महीने का, ऐसे हमने 24 मंथ्स के लिए वी रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन 21st ऑफ जुलाई. वी लॉन्च्ड जब निफ्टी 25,000 का था, 25,000 का लेवल पे था. So this was a non-principal protected product, right? So again for 24 months, the return was up to 35% growth in Nifty. You will make 175% participation. तो अगर आप थोड़ा इक्वेशन देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है, अगर निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया तो डाउन साइड में 1:1x है. निफ्टी ने 10 नेगेटिव दिया, आपको भी 10% नेगेटिव है. बट ऑन दी अपसाइड अप टू 35% ग्रोथ इन निफ्टी. आप अब ये प्रोडक्ट के बैकग्राउंड में आप समझिए, पिछले 1 साल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 7-8% नेगेटिव रिटर्न दिया है. हमने जब 25,000 पे एंट्री की, निफ्टी का प्रीवियस पीक था 26,300 और 400 के आसपास, राइट. सो इफ यू कंसिडर दैट एज अ पीक, कंपेयर टू दैट हम लोग अभी भी 5-6% नीचे है. अभी तो और नीचे 25,000 पे किया था, अभी तो हम 24,500 पे है, राइट. सो वी आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 5-6% फ्रॉम द प्रीवियस पीक, राइट. 1 साल में, पिछले 1 साल में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप बाय अबाउट एटलीस्ट 10-12%, राइट. सो इफ यू थिंक फ्रॉम अ PE मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ यू लुक एट द फॉरवर्ड PE मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, I think somewhere around 24,000 के आसपास is like a very fair value in terms of the long period averages, right? So हमने क्या सोचा कि अगले 2 साल में, in fact we did lot of back testing also, that ऐसा कितनी बार हुआ है that on a 3-year rolling basis, मतलब 1 साल तो निफ्टी नहीं चला, अगर अगले 2 साल भी निफ्टी नहीं चलेगा तो that means 3 year का रिटर्न will be zero, right?
So if we did that analysis that in the past, ever since Sensex Nifty started 1979 से, ऐसा कितनी बार हुआ है that on a 3-year rolling basis, Nifty has given negative returns, right? And we didn't find so many observations. I think somewhere around 95% plus observations were that कि 3 साल में in a चढ़ती economy like India, when the GDP itself is growing at a nominal 10%, to conceive an idea कि 2-3 साल के बाद Nifty और negative return देगा, that was like a no-brainer. So then we thought that why not give people an option जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जिनको लगता है कि मार्केट अभी बॉटम आउट हो गया है, एंड एटलीस्ट अगले 2 साल तक तो मुझे तेजी दिख रही है, राइट? इट मे नॉट बी तेजी इन लास्ट 1 year, बट will it remain like this for next 2 years? Those investors who think the answer is no and the market might bounce, they might be okay to not have a principal protection, क्योंकि म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स बाय करते हो वहां पे कहाँ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन मिलता है, राइट? इफ मार्केट गोज नेगेटिव, योर पोर्टफोलियो आल्सो गोज नेगेटिव. तो डाउनसाइड में 1:1x है, बट ऑन द अपसाइड up to 35% growth, you will make 175% participation, 1.75 times the Nifty return, which means अगर निफ्टी सही में 35% बढ़ गया, आप 26% तो CAGR बनाओगे इसमें, right? 61% is absolute return. And think about it, what are the chances? In fact, you have Prabhudas Lilladher as a research house will have a view also on Nifty कि 2 साल में उनको कहाँ पे निफ्टी दिखता है, right? And if that they also resonate that यहाँ पे आपका इतना निफ्टी बढ़ सकता है, can this product be a way to participate along with whatever other things you are doing, right? So see, this leads us to similarly हमने एक एक्सिस बैंक के ऊपर अभी एक प्रोडक्ट बनाया था. सो एक्सिस बैंक आल्सो, if you are tracking, the stock has fallen a lot, and from a previous peak it has fallen almost 30-35%, if not more. So we feel that there is a great chance for it to bounce. तो हमने 18 महीने का प्रोडक्ट लॉन्च किया that in 18 months if it goes negative, you have same negative, but on the upside you make 1.6x the participation. जो निफ्टी में 1.75 था, यहाँ पे 1.6x है, करेक्ट? एंड रिलायंस के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं. टुमारो वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट ऑन रिलायंस, राइट? So we feel that another 18 months there is still a possibility for Reliance to grow. In fact, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैंने आपको निफ्टी मैक्सिमाइजर ये 175% समझाया, ये वाला प्रोडक्ट हमने मार्च मंथ में, दिस ईयर मार्च, हमने 1227 रुपए पे रिलायंस में एंट्री की है. वी हैड अ प्रोडक्ट एट दैट टाइम, नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड. अगले 18 महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, आई थिंक दिस वाज समवेयर अराउंड 30 या 31 मार्च को, वी एंटर्ड एट 1227 रुपीज, एंड द कंडीशन वाज कि यहां से वो प्राइस से अगर रिलायंस 25% बाउंस करता है, you get almost 170-175% participation, right? Now think about it. रिलायंस अभी कहां पे चल रहा है? ऑलमोस्ट क्लोज टू 1500 के आसपास है, 1450-1500 के आसपास. हमारे प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको 18 महीने में रीच करना था 1550 रुपए. वी आर ऑलरेडी वी आर वेरी क्लोज टू 15, between 1450 and 1500 चल रहा है, राइट? इट हैड ऑलरेडी रीच 1500, बट अभी वापस से थोड़ा नीचे आया along with the market. But if you think about it, the margin of safety has increased many-fold in that stock, because अभी अगले 12 to 13 months जो residual maturity है अभी वो प्रोडक्ट की, अगर रिलायंस का स्टॉक धीरे धीरे ग्रो होकर 1550 आ गया, our investors will make their required return, right? On 25% growth in stock, our investors will make almost 43% absolute return and a 27-28% CAGR, right? I have also personally invested in this non-PP and Reliance K stocks and stock. I like a lot of high risk. My own personal investment, I put it into this, non-principal protected product, because that's where there is a skin in the game, right? We also feel that this is where money can be made in future, right? So I will just say one thing and then we can open it up for Q&A. I think we have completed 1 hour, so I'll just say this. See, market में manufacturers तो बहुत है, right? There are other players also which are offering various products, MLD, PMS, everybody. But the true reflection of any manufacturer is in terms of how he is thinking and what are we launching as a product, because we are a manufacturer, right? आप सब financial doctors हो. We can only launch what we think is a relevant product, right? But then obviously you as a financial doctor will have to prescribe these products to your clients, right?
And together we'll have to think in terms of where do we add more margin of safety and generate better returns for the investors, right? Because ultimately agar return banana, so investors are going to stick around with you, right? I mean, they will also not shop around ki mujhe ye chahiye wo chahiye. And that's what we have seen that uh, जब मार्केट नीचे है, हमारा एक प्रिंसिपल क्या है, जब मार्केट नीचे है, you should actually not think about principal. I mean, this is not a generic statement. If there are certain retirees and some low risk appetite investors, they should think about their principal protection. But when the markets are lower, we generally keep a slightly higher time frame कि ठीक है, मैं अभी 2 साल कर देता हूँ ना, 18 महीने की, तो मेरे को 6 महीना जो एडिशनल मिलेगा, हो सकता है कि लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट माइट बाउंस, बिकॉज इफ इट रिमेन सप्रेस्ड फॉर अनदर 18 मंथ्स, इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इट माइट बाउंस फास्टर, और ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है, राइट? So I have covered everything. Like these are some of the past products, but I have covered this also. So I'll just take 1 minute to explain you here. Just say, for example, this was a COVID period. If you see the first product, 17th May, 17th April 2020, एकदम COVID का चल रहा था, right? We came out with a product. यहाँ से अगर मार्केट फर्स्ट 25% बाउंस करता है 3 साल में, यू गेट 300% पार्टिसिपेशन। 1% निफ्टी के सामने 3%। और ये प्रोडक्ट जब मैच्योर हुआ, निफ्टी गिव 25% CAGR, बिकॉज निफ्टी ऑफ कोर्स कोविड लो से 112% रिटर्न दिया, वी गिव 144% रिटर्न, राइट? उसके विपरीत एक एग्जांपल देता हूं, दैट अक्टूबर 21 में निफ्टी था 17,000। ये जो टाइम वाइज करेक्शन की मैं बात कर रहा था, कि पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो पॉइंट टू पॉइंट अच्छा लगता है कि निफ्टी 12,000 था कोविड से पहले। मतलब इफ यू सी 1 जनवरी 2020, निफ्टी वाज एट 12,000, 12,000, राइट? From there we are double right now. But if you see in that time frame, there was first 21 months till September 2021, Nifty gave 40% return, 17,700 तक। उसके बाद if you see another 18 months from October 2021 till March 2023, Nifty gave negative 3.5% return. You can see here, Nifty gave 3.11% negative, right? उस वक्त हमारा ये ड्यूअल एडवांटेज था कि 10.5% या निफ्टी whichever is higher, and that's how people got almost 7.66% alpha, right? So if you see and decode last 5 years also, ऐसे point to point बहुत अच्छा दिखता है, but there is a lot of volatility in this time frame. 40% positive, 3% negative. Again, then from October 2020, from April 2023 onwards, market gave another 40% return, right? So it's been a zigzag. Again, if you see last 1 year, it hasn't done anything. थोड़ा time wise and price wise correction हो गया 1 साल में निफ्टी का। So that's how you should look at that। हम लोग भी वैसे ही सोचते हैं कि given a market condition, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, how do we create more margin of safety and launch more relevant product? क्योंकि पैसा बन गया तो investor sticks around with us. So Kuljit ji, I'll pause here. I have covered everything what I wanted to. Now we can open it up for Q&A. Thank you so much, Bhavik ji. It was such a interesting session. In fact, I am also a customer to you. I have 2 MLDs running with you, but not the non-protected one. Definitely, I will go in for non-protected too. Friends, now floor is open. Please start typing your questions so that I can ask. I think few people were writing in the chat box, so let's go to that. We have question. Okay. Okay. Sorry. Yes. Partha had mentioned I have one question. Maybe Yeah, Partha, any question? Please type in. people can't unmute themselves and ask. It is only chat as an option. Unmute, I can allow, but if somebody wants to, please raise your hand. Yeah. He's asking, can I speak? Who's asking? Mr. Partha is asking, can I speak? And then in the meantime, Mr. Krishna. 1 minute. Partha ji, I will open up. Yeah, Mr. Partha, please speak.
You will have to unmute Mr. Partha. While he unmutes, there is one question. Can we use your product in F&O margin? Yeah. I don't think so. No, you can't So get any information on that. so can you Yeah, hear me? Mr. Partha. Yeah. Good evening, sir. First of all, thanks for your presentation, sir. Some 2-3 products actually, it is a well equipped product and good knowledgeable product also, as far as tax concerned and investment purpose. But my one question is that जब आपने सर फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन आप दिखाए थे, उस प्रेजेंटेशन में आप बोल रहे थे कि मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 28%। हाँ, अच्छा, मिनिमम 10%, मिनिमम अगर निफ्टी अगर चला तो मान के चले निफ्टी अगर 15% रिटर्न जनरेट करेगा तो मुझे अगर लास्ट 2 इयर्स में जो हाईएस्ट परसेंटेज रिटर्न जनरेट किया वही परसेंटेज हमको मिलेगा। मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 25%। ये इसकी बात कर रहे हो ना आप, ड्यूअल एडवांटेज की बात कर रहे हो, correct? हाँ हाँ, करेक्ट। तो अभी मिनिमम 10% हमको मिलेगा एंड मैक्सिमम 25%, पर अगर 25% नहीं गया, मान के चले 15% गया, तो हमको 15% ही मिलेगा। हाँ, बराबर है। जो एक्चुअल है निफ्टी, मतलब ये प्रोडक्ट में आपको मिनिमम 10% एब्सोल्यूट है, CAGR मत समझिए। CAGR है 6.63, ये आपका हाँ। मिनिमम कूपन हो गया, ठीक है। हाँ, पर अगर हाँ। मान लीजिए जैसे निफ्टी ने 15% एब्सोल्यूट रिटर्न दिया, तो आपको भी 15 मिलेगा, जिसका CAGR बनता है 9.87, जैसे यहाँ हाँ, पे। मेरा भी वही ठीक दिक्कत है। मान के चलिए 2 साल में, मतलब मान के चलिए निफ्टी पहला साल में 10% दिया और नेक्स्ट ईयर में 12% दिया और उसका नेक्स्ट ईयर में मान के चलिए 15% दिया, तो ये 3 साल में जो हाईएस्ट परसेंटेज दिया, मेरा हिसाब से उसी को कैलकुलेट किया जाएगा। नहीं 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 पार्था जी, मैं आपको समझा दूं, फिर से समझाता हूँ सबके बेनिफिट के लिए। देखिए, ये प्रोडक्ट है 18 महीने का, ओके। MLD में आप हाँ। समझिए, इस प्रोडक्ट का टेन्योर फिक्स्ड है, ये 18 महीने का है, ठीक है। इसके हाँ। डेट्स भी फिक्स्ड है कि 6 अगस्त 2025 को हमने ये लॉन्च किया, ठीक है। 6 अगस्त को, यही महीने में हमने, लास्ट वीक में हमने लॉन्च किया, लास्ट ट्यूसडे वेडनेसडे को लॉन्च किया। उस दिन का निफ्टी क्लोजिंग प्राइस था 24,574.2, 24,574.20। ये हमारा एंट्री पॉइंट फिक्स हो गया, करेक्ट। अभी इसका जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है, फाइनल फिक्सिंग लेवल, इनिशियल फिक्सिंग लेवल आपका हो गया, अभी फाइनल फिक्सिंग लेवल 18 महीने इसके कब कंप्लीट होंगे? अगर आप ऐड करेंगे अगस्त से 18 महीने, तो ये जनवरी में कंप्लीट होंगे, जनवरी 2027। इस दिन का 25 जनवरी 2027 का जो क्लोजिंग निफ्टी होगा, वो आपका एग्जिट लेवल बन गया। अभी एग्जिट लेवल माइनस एंट्री लेवल डिवाइड बाय एंट्री लेवल करेंगे, इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है। समझो निफ्टी ने 12% दिया तो 12, निफ्टी ने 20 दिया तो 20, निफ्टी ने 25 दिया तो 25, निफ्टी ने 30 दिया तो हम 25 ही देंगे। ये हमारा मैक्सिमम रिटर्न है, करेक्ट। पर निफ्टी मान लीजिए नेगेटिव चला गया, निफ्टी ने नेगेटिव 15 दिया है, तो हम आपको पॉजिटिव 10 देंगे, करेक्ट। आपको समझ में आया पार्थ जी? ये समझ में आया सर। वहाँ 18 मंथ्स का प्रोडक्ट है, करेक्ट। अभी मेरा एक बात है कि सर, अगर मेरा प्रिंसिपल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट है, तो मुझे 18 मंथ पे कंपाउंडिंग के हिसाब से 18% मिलेगा सर? नहीं नहीं, आप कंपाउंडिंग यहाँ पे CAGR, आप ये जो लास्ट कॉलम है ना, आप उसमें देख लीजिए। आपको एब्सोल्यूट देखना है कि आपने एंट्री की तब निफ्टी था, समझो कि ये 24,500 का निफ्टी था, और समझ लीजिए कि आप जब एग्जिट कर रहे हो तब निफ्टी था 29,500, समझो, तो 20% मोटा मोटी रिटर्न आया निफ्टी का। पॉइंट टू पॉइंट CAGR की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको 20% एब्सोल्यूट रिटर्न आया। अगर ये हाँ। 18 महीने का रिटर्न देखेंगे तो ये जैसे 13% बना, ठीक है। आपको देखना है पॉइंट टू पॉइंट कि मेरा 18 महीने स्टार्ट हुआ ये तारीख को, 6 तारीख को, और 25 जनवरी 2027 का जो निफ्टी है, वो मेरा एग्जिट पॉइंट है, राइट। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक, इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दैट आपको समझना चाहिए, कि मार्केट ऊपर चढ़ के नीचे आ गया, ऐसा हुआ भी है। और ऐसा हाँ। उल्टा भी हुआ है कि नीचे चढ़ के ऊपर आ गया, कि तब मतलब आपको काफी मार्केट हाँ। नीचे ऊपर आ गया। बट आप एक समझिए, इनफैक्ट लेट मी स्पेंड अ मिनट ऑन दिस। काफी बार डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, यार ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो मैं रुक सकता हूँ। ऐसे मेरे को बहुत आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि ये प्रोडक्ट में तो क्या है, डिफाइंड मेच्योरिटी 18 महीना कंप्लीट, मतलब मेरे को तो निकलना ही पड़ेगा, मार्केट ऊपर है नीचे है। तो तो इसमें क्या है,
कि फॉर एग्जांपल वर्सेस दैट वो बोलते हैं कि मैं अगर इसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूं तो मुझे तो आई डोंट नीड टू एग्जिट, मैं लॉस कैरी करूंगा, जब प्रॉफिट में आऊंगा तब निकलूंगा। बट उसके सामने आर्ग्यूमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट आपको मिनिमम 10% देने वाला है। आपने 100, एक एग्जांपल समझते हैं, आपने 100 रुपया ये प्रोडक्ट में लगाया, 100 रुपया आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया। मान लीजिए कि मार्केट 15% नेगेटिव है एक 18 महीने के बाद में, तो म्यूचुअल फंड आपको 100 का 85 देगा, मैं आपको 100 का 110 दूंगा। तो आप समझिए कि 100 के सामने 110 मिला और मार्केट भी 15% नीचे मिला। आप समझ रहे हो? 15 पर हाँ जो हाँ मार्केट में आप इन्वेस्ट, तो उससे तो मतलब दैट मीन्स अगर कंपनी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है और मार्केट अगर 15% नीचे मिला, दैट मीन्स यू वर बुलिश ऑन द मार्केट 15% ऊपर, और वही मार्केट अभी आपको 15% नीचे मिल रहा है, तो मतलब वहां पे तो व्हाट आवर इन्वेस्टर्स डू इज कि वो ड्यूअल एडवांटेज से पैसा जो मैच्योर होता है ना, अगर मार्केट डाउन है तो फिर वो नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड में लगाते हैं, क्योंकि आप तभी तो ज्यादा पैसा बनाओगे ना। See, when you become greedy, when others are fearful, then only you will make money. Otherwise, आप वो मीडियोकर 12% बनाओगे इंडियन इकोनॉमी टाइप। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऐसा, और हम लोग भी वैसे जानबूझ के प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च करते हैं सो दैट यू हैव एन, आप गलती से भी पैसा इन्वेस्ट करवा दोगे तो भी आपका अच्छा रिटर्न बन जाएगा। Nicely explained, Mr. Bhavik. I will take another question. What happens if Aban defaults? Then what Yes. happens to client's investment? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई थिंक वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। आपको इस टॉपिक के मतलब जो मैंने बोला था क्रेडिट रिस्क, एबैंस का आप ले रहे हो या कोई भी एमएलडी, चाहे कोई भी नॉर्मल डेट इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी एमएलडी इन्वेस्टमेंट करते हो, यू आर टेकिंग अ क्रेडिट रिस्क ऑन एबैंस, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। आई एम वेरी ग्लैड दैट समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो चाहे मैं फिक्स्ड रिटर्न दूं, चाहे मैं मार्केट लिंक रिटर्न दूं, यू आर टेकिंग अ क्रेडिट रिस्क ऑन एबैंस। तो पहले आपको एबैंस का फाइनेंशियल स्टडी करना चाहिए, और इसलिए मैंने शुरुआत में ये दिखाया था कि जहां पे हमारी नेटवर्थ है 1165 करोड़ के आसपास, उसके सामने मेरा जो नेट बोरोइंग है वो 105 करोड़ है। आप अगर आप मेरा अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देखेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे, तो ये जो टोटल बोरोइंग है वो आपको ऑलमोस्ट दिखेगा 900 करोड़ के आसपास में। पर 900 करोड़ में से हमने, हमारी जो एनबीएफसी है एबैंस फाइनेंस, उसमें ऑलमोस्ट हमने 700 करोड़, 700-800 करोड़ रुपए हमने जीसेक में इन्वेस्ट किया था, बिकॉज हमें इंटरेस्ट रेट गिरेगा, उसमें बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, वो हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट लेना था। एंड बिकॉज वी आर एन एनबीएफसी, हम रेपो विंडो में, जो ट्रेप्स बोलते हैं रेपो विंडो में, उसमें बोरो कर सकते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 350 करोड़ का जो हमारी कैपिटल है, हमने कैपिटल इन्वेस्ट की 2 बार, तो 3 बार इन्वेस्टमेंट हो गया और 2 बार बोरोइंग हो गया। अगर मैं एसेट साइड पे मेरा जीसेक इन्वेस्टमेंट है और लाइबिलिटी साइड पे मेरा जीसेक के अगेंस्ट में ट्रेप्स रेपो विंडो में बोरोइंग है, तो मैं अगर दोनों को माइनस कर देता हूं तो मेरा जो नेट बोरोइंग है वो मेरा 105 करोड़ बचेगा, राइट? तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मेरा आप ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे कि मेरे पास 1100 करोड़ के खुद के फंड्स है, नेटवर्थ है, और सामने मेरा टोटल बोरोइंग 105 करोड़ का है, तो मेरी डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है, राइट? ये आपका कंफर्ट नंबर 1 हो गया। कंफर्ट नंबर 2 आपको क्या देखना चाहिए कि एबैंस की खुद की क्या एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको प्रोडक्ट में समझाया कि आप 100 रुपए में से मेरे को 92 रुपए जो है वो मैं ड्यूअल एडवांटेज में कोर एक्टिविटी में लगाता हूँ। तो आपको स्टडी करना चाहिए कि एबैंस की कोर एक्टिविटी क्या है। क्या हम लोग माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हैं, हम ये टाइप के, यू शुड स्टडी दैट देयर आर इन आवर एनबीएफसी देयर आर 0 एनपीए, बिकॉज हमें कमोडिटीज मार्केट समझ में आता है, हम उसी के आसपास की एक्टिविटी करते हैं। मेरी अगर एनबीएफसी भी एमएलडी इशू करती है, वो कमोडिटीज लिंक एक्टिविटी में जो आर्बिट्राज करते हैं उसी को लेंडिंग करती है। वी आर नॉट लाइक अ रिटेल लेंडर लाइक जैसे टू व्हीलर फाइनेंस कर दिया, होम फाइनेंस कर दिया, सो सो फॉर। सो आपको और डिटेल में हमारा फाइनेंशियल, बिकॉज वी आर अ लिस्टेड कंपनी, द पेरेंट कंपनी इज लिस्टेड, तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। यू शुड स्टडी अवर फाइनेंशियल्स, and if you have any doubt please ask my team member, please of course ask Kuljit ji and his team members rather, आपको कुछ भी query है तो, but I'm very glad somebody asked on the credit risk part as well. Correct, correct. One more question, Abhishek ji. How is the exit of underlying calculated and why 6-month average value is considered? So there is no 6 months average value, it is like bullet point only. Okay, Uh, okay.
या जैसे इसमें जैसे ड्यूअल एडवांटेज है फॉर एग्जांपल, तो डेट्स आर क्लियर कि 25 जनवरी 2027 का जो निफ्टी होगा वो आपका एग्जिट Correct. पॉइंट है, लाइक दैट. सो देयर इज नो एवरेज ऑफ 6 मंथ्स There is एंट्री. a question from Mr. Deepak. Issuer of debenture, Avance Jewel paid up cap is 5 crores. हाँ, Main business in bullion, then which group company dealing in equity in this product? नहीं, उसका नेटवर्थ इज मोर देन 130 करोड़. वी कैन शेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल्स ऑफ दिस. आप शायद वो जो इशूड एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल है शायद वो देख रहे हैं, मे बी ही Correct, correct, राइट. बट वो right. मतलब आप वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी देखोगे, 20 लाख करोड़ मार्केट कैप है, पर आप अगर उसका कैपिटल देखोगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो 10 रुपए का कम ही दिखेगा. बट आई Correct. थिंक ये जिन्होंने भी पूछा है, यू प्लीज आस्क and go through the audited financials of Avance Jewels Limited. Avance Financial Services तो आप देखो ही देखो, पर ज्वेल्स का भी देखो, बिकॉज आप वो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट रिस्क नहीं है. Correct. Partha, you're asking launch date is 6th and 8th, but then tomorrow also you can add, but exit remains the same. I think Yes. expiry remains the same in all the products. Yes, yes. I think let's spend 2 minutes on this question. Yeah. So देखिए, जब हम प्रोडक्ट अनाउंस करते हैं, जैसे हमने ये रिलायंस वाला प्रोडक्ट अनाउंस किया कि हम ये प्रोडक्ट को हम ट्रेड करेंगे, ये रिलायंस का प्रोडक्ट हम कल ट्रेड कर रहे हैं 12 तारीख को, टुमारो. दिस इज द इनिशियल फिक्सिंग लेवल, ठीक है. ये लॉन्च डेट है 12 तारीख. इसका मतलब कल क्या हुआ कि कल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए में डिबेंचर मिल जाएगा. एंड टुमारोज क्लोजिंग प्राइस विल बी ट्रीटेड एज एन एंट्री प्राइस, कि ये प्राइस पे मैंने ये एमएलडी एंट्री कर दिया है. इसका जो एग्जिट है दैट इज आफ्टर 18 मंथ्स, दैट इज 23rd of February 2027. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट डे अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट डे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट. मैं आपको एक जस्ट एक पोर्टल, मैं ये स्टॉप करके मैं एक पोर्टल बताता हूँ आपको, जहां पे जाके आप हमारा मार्क टू मार्केट जो ऑफरिंग प्राइस है वो आप देख सकते हो. तो मैं आपको एक जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट प्रोजेक्टिंग इट हियर. मैं आपको वो समझाता हूँ. तो आप ये नोट कर लीजिए, aim.abans1.com. तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ये पोर्टल खुला है aim.abans1.com, ठीक है. अभी ये पोर्टल में क्या है, अगर आप जाओगे ना तो दो चीजें आपको मिलेगी. एक तो ऊपर के सेक्शन में आपको जितने भी हमारे लाइव प्रोडक्ट्स हैं ना, अभी उसके आपको 2 पेजर डॉक्यूमेंट मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीरीज 144 एक्सिस बैंक स्टॉक लिंक अगर एमएलडी ओपन करता हूँ तो आपको ये ऐसा मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा, राइट. ठीक है, मैंने अभी आपको जो समझा है वो प्रेजेंटेशन था, बट आई एम श्योर कि आप इन्वेस्टर को सब कुछ नहीं भेजना चाहते हो, राइट. जिसको आपको लगता है कि ये कंजर्वेटिव, उसको ड्यूअल एडवांटेज ही भेजो, उसको निफ्टी मैक्सिमाइजर नॉन पीपी करके हार्ट अटैक देने की जरूरत नहीं है, राइट. यू वांट टू जस्ट बी फोकस्ड कि 10 कस्टमर को, तो ये सीधा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप मोबाइल से भी आप ये पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो. ये डॉक्यूमेंट कैसे डिजाइन किया है, फर्स्ट इट टेल्स यू अबाउट मार्केट लिंक डिबेंचर कि ये कैसे काम करता है, बिकॉज आपके इन्वेस्टर्स का हो सकता है कि उनको पता ही नहीं है कि एमएलडी क्या है, ठीक है. दूसरा, यहाँ पे आपको वाई एबेंस पर एमएलडी, जो मैंने आपको समझाया कि मेरा क्रेडिट रिस्क आपको कैसे देखना चाहिए, ये आपको मिल जाएगा. तीसरा, जो मैंने प्रेजेंटेशन में आपको सिनेरियो एनालिसिस दिखाया वो यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट. उसके बाद वाला जो पेज है, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट यहाँ पे, एंड दिस ऑल्सो शोज ट्रांसपेरेंसी. इट ऑल्सो शोज यहाँ पे कि डिबेंचर जो है वो 20 वर्किंग डे में क्रेडिट होंगे, आपके एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, आपको नया डीमेट खोलने की जरूरत नहीं है. बट इट टेक्स 20 वर्किंग डेज अप्रोक्सीमेटली फॉर द डिबेंचर टू गेट क्रेडिटेड, ठीक है. नेक्स्ट पेज में यहाँ पे पोस्ट टैक्स रिटर्न दिया है, जो मैंने आपको समझाया कि सपोज आपका इन्वेस्टर जीरो टैक्सेशन में आता है तो उसको 48% एब्सोल्यूट रिटर्न मिला, CAGR इज 29.72, और क्लाइंट अगर आपका 30% में है, 20% में है, तो आप एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सकते हो कि जब आपकी प्रोडक्ट मेच्योर होगी उस साल में, नॉट अभी, जब मेच्योर होगी तब आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में होंगे, उसके हिसाब से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ आपको इतना CAGR रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है. उसके बाद में जैसे ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था 30 जुलाई को, तो ये 1 लाख की फेस वैल्यू पे था. अभी उसके बाद जैसे स्टॉक प्राइस गिरा तो नेक्स्ट डे का ऑफरिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे मेंशन किया होता है, जैसे 99,980, 99,938, राइट. सो इसमें एंड देन लाइक टुडे लाइक इट इज मेंशन, लाइक जैसे कल का भी प्राइस अभी अपडेट हो गया कुलजीत जी, इफ यू सी 12 तारीख Correct. टुमारो द प्राइस इज अपडेटेड, 1,01,330 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको ये डिबेंचर खरीदना है तो, करेक्ट.
So on a Correct. this is very transparent that कल का जो प्राइस है वो आपको 2:30 PM तक हमारे बैंक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने हैं, और जो इन्वेस्टर को ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है वो भी यहाँ से होती है। तो जैसे ये साइन अप नाउ लिखा है, वहां पे मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। जैसे फोन नंबर इन्वेस्टर को ओटीपी जाएगा, वो वेरीफाई करो, फिर ईमेल आईडी आएगा, वो वेरीफाई करो, फिर डेट ऑफ बर्थ एंड पैन कार्ड नंबर डालोगे, उसके बेस पे CKYC होगा। देन यू अपलोड योर डीमेट स्टेटमेंट, एग्जिस्टिंग पीएल का डीमेट चलेगा, बैंक रिलेटेड प्रूफ आप डाल दो, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, और आप आधार ओटीपी के बेस आपका ट्रांजेक्शन केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। और जो पेमेंट करना है पर डिबेंचर, दैट वी विल शेयर द अकाउंट नंबर, दैट आई थिंक कुलजीत जी के साथ में है ऑलरेडी। तो यू कैन जस्ट शेयर द प्रोसेस नोट विथ योर पार्टनर्स एज वेल। तो ये पूरा ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। इसमें एनआरआई क्लाइंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो आप सब ध्यान में रखिएगा। इट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेसेस, कोई भी कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, LLP कंपनी, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। Any other questions? I don't think so. और Thank एनी you, Bhavik ji. और एनी फीडबैक आपको क्या लगा, आप मे भी चैट बॉक्स में आप No, लिख सकते हैं। I'm just going to, in fact, I'm just going to raise the poll. We have polling, okay? In that, automatically people poll and then we take a feedback. यस, Okay, no problem. Bhavik ji, so nice to have that kind of insight. It was wonderful. You are actually in depth. You have micro topics आप cover कर रहे हो. So nice of it. And we will like to have, many such. In fact, dedicatedly, we would like to have some small events whereby we can promote this MLD product. It's a very interesting product. Okay, on राइट। behalf of everybody, all the business partners, I thank you and आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए. It was so nice of you. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू। you. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय। Yeah. Please complete the poll, dear. सभी लोग प्लीज पोल आपके लिए रेस किया हुआ है, आप आंसर्स दीजिए जल्दी जल्दी, देन यू कैन एग्जिट सर. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प ऑफ फॉर अस टू इम्प्रूव ऑन. प्लीज सभी अपना पोल रजिस्टर करें. इट्स अ रिक्वेस्ट. So I am ending the poll. I think people are not filling in the poll. Thank you so much.